ستارہ مہر النساء سے کاظمی صاحب کی ملاقات جب سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ہوئی تب اس کی حالت نہایت تشویشناک تھی۔ دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور پسلیاں چکنا چور ہو گئی تھیں۔ اس کا چہرہ پٹیوں میں چھپا ہوا تھا، تاہم بات چیت بآسانی کر لیتی تھی۔ کاظمی صاحب کو اس نے روتے ہوئے بتایا، مجھے میرے شوہر نے 5ویں منزل سے دھکا دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں مرنے سے بچ گئی، ورنہ اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کاظمی صاحب نے پوچھا، تمہیں اسپتال کون لایا ہے اور کیا تمہارے شوہر کو یہ معلوم ہے کہ تم ہلاک ہونے سے بچ گئی ہو؟ نہیں، اسے اگر معلوم ہوتا تو وہ مجھے دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرتا۔ دراصل ہمارے فلیٹس کے نیچے سے گزرنے والے روڈ پر ٹریفک کا جام ہوتا ہے۔ میں ایک چلتی ہوئی گاڑی پر یہاں سے ہوتی ہوئی سڑک کے درمیان آ کر گری، مجھ پر چند گاڑیاں چڑھ گئیں، پھر وہ تمام گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، جن میں چند افراد جاں بحق ہوئے۔ تمام لاشوں کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، زخمیوں میں بھی تھی۔ بعد ازاں لاشوں کو DNA ٹیسٹ کیے بغیر ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے شوہر رجب علی کو جس عورت کی لاش دی گئی وہ کوئی لاوارث عورت تھی، جو نہ صرف جسامت کے لحاظ سے میرے جیسی تھی بلکہ اس نے کپڑے بھی اسی رنگ کے پہن رکھے تھے جس رنگ کے میں نے پہنے تھے۔ رجب علی کو مغالطہ ہوا اور اس نے لاوارث لاش کو دفنا دیا۔ کاظمی صاحب نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو یعنی اس خوفناک حادثے میں تم ہلاک نہیں ہوئی اور تمہارے شوہر نے کسی کی لاوارث لاش کو مغالطے میں دفنا دیا کہ تم ہلاک ہو چکی ہو؟ ستارہ مہر النساء نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس حادثے میں میرا چہرہ بری طرح متاثر ہوا، مجھے پہچاننا تو دور کی بات ہے، کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ میں وہی خوبرو اور حسین و جمیل ستارہ ہوں جس پر لڑکے پہلی نظر ڈالتے ہی مر مٹتے تھے۔ رجب علی کو شک بھی نہیں ہوا اور اس نے لاش کو دفنا دیا۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کیوں کی؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، اس کا دماغی توازن درست نہیں، مہر النساء نے بتایا۔ اس پر وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں، تاہم ان دوروں کے بعد وہ ایک سلجھا ہوا بے ضرر انسان دکھائی دیتا ہے۔ شادی کے بعد جب اس کے دوروں میں شدت آنے لگی تو میں نے خلا کے لیے درخواست دائر کی اور اس نے تیش میں آ کر مجھے فلیٹ کی بالکنی سے نیچے گرا دیا۔ کاظمی صاحب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے تو پھر میں اپنی NGO سے بات چیت کر کے اس پر مقدمہ دائر کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی، میں وقتاً فوقتاً پوچھ گچھ کے لیے یہاں آتا رہوں گا۔ مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا اور کاظمی صاحب وارڈ سے باہر آ گئے۔ ان کے چہرے پر تفکر بھرے تاثرات تھے۔ مہر النساء کے سسر کامران یوسفی نہایت قابل اور قایا وکیل تھے۔ کاظمی صاحب انہیں اچھی طرح جانتے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا لڑکا ذہنی مریض تھا۔ تاہم عدالت میں ان کے لیگ سے لیگ یوسفی صاحب سے ہوتی رہتی تھی۔ کاظمی صاحب کا تعلق جس فاؤنڈیشن سے تھا، اس کا کام ایسے ہی بے بس و لاچار مظلوموں کی مدد کرنا تھا، جنہیں ظالم اور امیر طبقات طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر پسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس فاؤنڈیشن کو بیرون ملک سے حتیر پیمانے پر فنڈ موصول ہو رہا تھا، اس لیے اس کی حیثیت نہایت مستحکم تھی۔ اگلے دن کاظمی صاحب نے فاؤنڈیشن کے سرکردہ افراد سے بات چیت کرنے کے بعد یوسفی صاحب کے لڑکے رجب علی پر مقدمہ دائر کر دیا اور ہفتے کی صبح جب عدالت کی جانب سے یوسفی صاحب کو نوٹس موصول ہوا تو اسی شام یوسفی صاحب نے کاظمی صاحب کو فون کیا اور نرم لہجے میں اپنی بہو کے متعلق پوچھا۔ کاظمی صاحب نے بتایا، اس کی حالت بہت خراب ہے، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ 5ویں منزل سے نیچے گرنے کے بعد وہ ہلاک ہونے سے کیسے بچ گئی، تاہم اسے فاؤنڈیشن کی جانب سے خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جب تک مقدمہ چلتا رہے گا اس سے کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا۔ یوسفی صاحب کی آواز سرد ہو گئی اور انہوں نے بولا، وہ میری بہو ہے، اگر ہلاک ہونے سے بچ گئی ہے تو سسر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ اس کا علاج کراؤں، مجھے فوراً اس کا ایڈریس سینڈ کرو ورنہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ کاظمی صاحب نے بھی سرد لہجے میں جواب دیا، حادثے سے قبل وہ حلا کے لیے اپیل کر چکے ہیں، اس لیے آپ کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہے وہ عدالت میں کیجیے گا، اپنی تیاری مکمل کر لیجیے، کیونکہ دوران ملاقات مجھ پر جو انکشافات ہوئے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ جب میں انہیں عدالت کے سامنے بیان کروں گا تو آپ دونوں باپ بیٹے کا پول کھل کر سامنے آ جائے گا۔ کاظمی صاحب نے موبائل بند کر دیا۔ اگلے ہفتے پہلی پیشی ہوئی، چونکہ مقدمہ ایک وکیل کی جانب سے دوسرے وکیل پر دائر کیا گیا تھا، اس لیے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگلی رو میں یوسفی صاحب کے ساتھ ان کا صاحبزادہ رجب علی بھی براجمان تھا۔ اس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان تھی اور بظاہر پاگل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مہر النساء کے کہنے کے مطابق وہ فائن آرٹ کی تعلیم کو حیدرآباد کر چکا تھا اور بہترین مصور تھا۔ شادی کے بعد اس نے مہر النساء کی چند تصاویر بنائی جن پر اصلی ہونے کا گمان ہوتا تھا، لیکن اسے اپنے ہنر کی قدر نہیں تھی، اس لیے وہ اس پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ یوسفی صاحب نے بھی اس کے اس ہنر کو تقویت دینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جب بھی اس سے کوئی تصویر مکمل نہیں ہوتی تب وہ تیش میں آ کر توڑ پھوڑ شروع کر دیتا تھا اور یوسفی صاحب کو توڑ پھوڑ پسند نہیں تھی، اس لیے کچھ عرصہ برداشت کرنے کے بعد انہوں نے اس کی صلاحیت کو دبانے کے لیے اس کی شادی مہر النساء سے کر دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی رجب علی کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ ہو سکی، بلکہ غصے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس نے اپنی صلاحیت کو اور زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال جج صاحب کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کاظمی صاحب نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے بتایا، میں مقدمے کی شروعات سے پہلے آپ کو موکلہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ بیان دینے کے لیے عدالت میں آ سکے۔
5वीं मंजिल से गिरने की वजह से इसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और सीने की पसलियां भी मुतासिर हुई हैं, इसलिए इसका अदालत में आना मुमकिन नहीं। जज साहब बोले, आप अपनी मोकला के मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टरों के बयानात पर मुश्तमिल कागजी कार्रवाई की तफसील अदालत में पेश कीजिए। अदालत का नुमाइंदा भी बिलमुशाफा आपकी मोकला से मुलाकात करेगा ताकि मालूम हो सके कि वो वाकई इस काबिल नहीं है कि बयान देने के लिए अदालत में आ सके। मेरी मोकला को जान का खतरा लायक है, इसलिए इसे अस्पताल से उठाकर खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अदालत के नुमाइंदे की मुलाकात मैं इससे करा दूंगा। जज साहब ने इस बात में सर हिला दिया और काज़मी साहब ने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए रजब अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी मुवक्किला सितारा महर-उन-निसा को एक हफ्ता कबल इसके शोहर रजब अली ने 5वीं मंजिल से धक्का देकर हलाक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी मुवक्किला को अपनी दोनों टांगों से महरूम होना पड़ा। हादसा इतना होलनाक था कि इसकी बदौलत 8 के करीब हलाकतें हुई और 12 अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी चिकनाचूर हो गई। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ट्रैफिक से भरी हुई सड़क पर जब सबसे आगे जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर घबरा कर ब्रेक लगा देगा तो इसके पीछे आने वाली गाड़ियों के साथ क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। मेरी मुवक्किला किसी एक गाड़ी की छत पर गिरी, जिसकी वजह से वो हलाक होने से तो बच गई, लेकिन गाड़ी की छत से नीचे गिरने के बाद शदीद हादसे का बायस बनी। तमाम लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया और अस्पताल वालों की गैर जिम्मेदारी की वजह से शुदा लाशों को DNA टेस्ट किए बगैर लाहिकीन के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से मेरी मोकला के शोहर रजब अली को इस गलतफहमी में मुब्तला होना पड़ा कि इसकी बीवी की मौत वाक़ई हो चुकी है और ये गलतफहमी मेरी मोकला के हक में मुफीद साबित हुई, वरना इसका शोहर इसे दोबारा कत्ल करने की कोशिश करता। होश में आने के बाद मेरी मोकला ने मुझसे रब्ता किया और मुकदमा लड़ने की दरख्वास्त की। जज साहब ने कलम उठाकर पॉइंट नोट किया, फिर अगली रो में बैठे यूसुफी साहब की जानब देखते हुए बोले, अगर सितारा महर-उन-निसा के मुगालते में किसी और की लाश को कब्र में दफनाया गया है तो इस तौर पर कब्र को खोलने के बाद लाश का DNA टेस्ट कराया जाए ताकि मालूम हो सके कि लाश किसकी है। यूसुफी साहब बोले, दरअसल इस मामले में किसी हद तक मैं भी कसूरवार हूँ, मुझे इस वक्त DNA टेस्ट करवा लेना चाहिए था जब लाश मेरे हवाले की गई, लेकिन मसरूफियत के बायस मुझे ये ख्याल नहीं रहा था। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि लाश किसी और को भी हो सकती है। काज़मी साहब ने पूछा, ज़रा इन मसरूफियात की तफसील बयान कीजिए जिसकी वजह से आपने DNA टेस्ट करवाने में बेपरवाही का मुजाहरा किया था। बेपरवाही की बात नहीं, दरअसल इन दिनों अस्पताल में हड़ताल चल रही थी, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर भी जाना था। हड़ताल 1 महीना चलती रही। काज़मी साहब जज से मुखातिब होते हुए बोले, मैं अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करते हुए महर-उन-निसा के शोहर रजब अली को कटहरे में बुलाना चाहूँगा। यूसुफी साहब ने बात को दरमियान में काटते हुए कहा, मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि मामले में महर-उन-निसा की तरह रजब अली को भी कटहरे में ना बुलाया जाए। इसकी दिमागी हालत इस काबिल नहीं कि मुखालिफ वकील के सवालात का जवाब दे सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालत महर-उन-निसा के मामले में नरमी से पेश आने के बाद कुछ लचक का मुजाहरा रजब अली के मामले में मद्देनजर रखेगी। जज ने कहा, तो फिर आप अपने मौके की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दीजिए ताकि इस केस की सूरत हाल वाज़ेह हो सके। यूसुफी साहब ने करीब रखी हुई मेज़ से फाइल उठाकर जज के सामने रखते हुए बताया, आप डॉक्टर सोबिया रियाज की रिपोर्टों का मुताला कर सकते हैं, मैं रजब अली का इलाज इन्हीं से करवा रहा हूँ। जज साहब ने फाइल खोलकर इसका मुताला किया, फिर यूसुफी साहब से मुखातिब होते हुए बोले, आप इस हादसे की तफसीलात बयान कीजिए जिसकी वजह से आपकी बहू की जान जाते जाते बची। यूसुफी साहब ने बताया, मेरा लड़का रजब अली दिमागी तौर पर सेहतमंद नहीं है, इसे बात पे बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से मुश्तिल होकर किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचा सकता है। हादसे वाली रात इसने तैश में आकर महर-उन-निसा को फ्लैट की बालकनी से नीचे धक्का दे दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में था, मुझे इस हादसे के मुतालिक कुछ देर से मालूम हुआ। शाम को मुझे सिविल अस्पताल से कॉल मसूल हुई और मुझे लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। लाश क्या थी? हड्डियों और गोश्त का मलगूबा थी, जिसे मैंने कपड़ों की दर्जियों से पहचाना। काज़मी साहब बोले, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि रजब अली इतना बीमार नहीं कि किसी को कत्ल कर सकता हो, कहीं ये सब मिली भगत तो नहीं? यूसुफी साहब ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तो फिर आपने डॉक्टर सोबिया से मुलाकात नहीं की, वरना वो आपको बीमारी की तफसील से ज़रूर आगाह करती। वो जज साहब की जानिब मुड़ते हुए बोले, चंद माह कबल मैंने डॉक्टर सोबिया की हिदायत पर अमल करते हुए रजब अली के कॉलेज फेलोज़ को फ्लैट में मदऊ किया। ये मुलाकात हाथरखा साबित हुई। अगर इनमें से एक रजब अली पर हंस न पड़ता, मैं इस वक्त फ्लैट की बालकनी में खड़ा इन्हें देख रहा था। मुझे अच्छा लाख था कि ये सब होगा, इसलिए मैंने तमाम तकरीब के दौरान रजब अली को अकेला नहीं छोड़ा और बाद में भी ना छोड़ता, अगर मुझे रफ़ा हाजत के लिए मजबूरन अपने कमरे में ना जाना पड़ता। मेरे जाने के बाद रजब अली के दोस्तों ने इसका मजाक उड़ाया और इसने आपस से बाहर होकर इनमें से एक का सर फाड़ दिया। बाद में मुझे इस लड़के के माँ बाप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ी। इस वाक़े के बाद मैंने रजब अली पर फ्लैट से बाहर जाने में पाबंदी आयद कर दी। काज़मी साहब ने पूछा, आपने किसी मासूम लड़की को अपने वफात की बींट चढ़ाने के लिए आंखों पर खुदगर्जी की पट्टी बांध ली थी, क्या यह जुल्म नहीं था? दरअसल ये मशवरा मुझे डॉक्टर सोबिया ने दिया था। इसके कहने के मुताबिक शादी के बाद इसके दिमाग पर खुशगवार असरात मुरत्तिब होंगे। मुझे क्या मालूम था कि वो कत्ल ही कर बैठेगा, वरना मैं रजब अली की शादी भी ना करता। काज़मी साहब ने पूछा, मुझे केस की स्टडी के दौरान सनी के पुरस्कार मामले के मुतालिक मालूम हुआ, कुछ इस पर भी रोशनी डाली है। यूसुफी साहब ने बताया, इन दिनों मैंने रजब अली का इलाज डॉक्टर सोबिया से करवाना शुरू किया था। डॉक्टर ने इसके मामले पर तहकीक के बाद एक किरदार को तहलीक देने का मशवरा दिया। यह नफ्सियात का एक पहलू है जिस पर आप शायद ही यकीन करें। हम डॉक्टर सोबिया अदालत के कमरे में मौजूद हैं, इसके बाद आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। इस किरदार का नाम रजब अली ने खुद रखा था। यह दरअसल अंग्रेजी नावल के राइटर तहलीककार का किरदार था जिसे रजब अली बहुत पसंद करता था। इस किरदार को जीते जागते इंसान की हकीकत देने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी।
मैं इस किरदार को हकीकत का रूप देने के लिए रजब अली के साथ इससे बातचीत किया करता। जब रजब अली मुझसे पूछता है कि मैं किससे बातचीत कर रहा हूँ, तब मैं सनी का नाम ले लेता हूँ। बहरहाल अपनी इस काविश में मैं जल्दी ही कामयाब हो गया, लेकिन बाद में इस किरदार ने तहरीबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तब मुझे इसे खत्म करने के लिए काफी दिमाग सोजी करना पड़ी। काज़मी साहब बोले, अब मुझे आपकी दिमागी हालत पर भी शक महसूस हो रहा है। आपने अदालत के कमरे में खड़े होकर ऐसे नाकाबिले फहम बातचीत शुरू कर दी गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी डॉक्टर सोबिया के क्लिनिक ही पहुंच पड़े। यूसी साहब बोले, मेरा बयान नाकाबिले फहम नहीं है। इस किरदार को नफ्सियाती उलझनें दूर करने के लिए तहलीक किया गया था। रजब अली तन्हाई का शिकार होता जा रहा था। वो तमाम दिन फ्लैट में कमरे में बंद होकर पेंटिंग करता रहता। मैं चाहता था कि वो फ्लैट से बाहर निकले, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, पार्टियों में शिरकत करे, लेकिन वो कमरे की हद तक महदूद होकर रह गया था। सनी के किरदार ने कुछ तकवीत दी और वो इसके हमरा फ्लैट से बाहर निकलने लगा, लेकिन तब मार दाड़ के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। वो किरदार इसे मार पीट करने पर मजबूर करता था। शुरू के दिनों में रजब अली ने लड़ने झगड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। आप यकीन करें, मेरा बहुत नुकसान हुआ। इसने दीवार पर लगे एलईडी को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि एलईडी पर मनपसंद फिल्म नहीं लग रही थी। दूसरे दिन इसने फ्लैट में लगे फानूस को तोड़ दिया। मैंने वजह मालूम की तो इसने बताया कि रोशनी इसके दोस्त को पसंद नहीं। बाद इसने फ्लैट की तमाम लाइटों को तोड़ दिया। मेरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। मैंने डॉक्टर सोबिया से रब्ता करके मामले से आगाह किया। डॉक्टर ने किरदार को तब्दील करने के लिए कहा, आप लोग हैरत में मुबतला हो रहे होंगे। मैं भी इस वक्त हुआ था, लेकिन नफ्सियाती उलझनों का ताल्लुक इसरारियत भरे वाकयात से जुड़ा हुआ होता है। इन वाकयात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, तहम इन्हें हकीकी बनाने के लिए कोशिशें जरूर की जाती हैं, जैसा कि मैं कर रहा था। डॉक्टर सोबिया का कहना था कि मैंने जिस किरदार का इंतखाब किया था, इसमें शर की ताकत ज्यादा थी। यानी राइटर इस किरदार को मारदार और तहरीबी कार्रवाई के लिहाज से मंसूब करता था, और चूंकि यह किरदार रजब अली का पसंदीदा किरदार था, इसलिए वो दिलचस्पी के साथ पढ़ता था। बाद अज़ां इस किरदार से अपनी शरपसंदाना फितरत के तहत तोड़ फोड़ को इसने ज़्यादा अहमियत दी। मैंने एक दफ़ा फिर किरदार को तब्दील करने की जद्दोजहद शुरू कर दी। मुझे नाकुश देने चबाने पड़े, इसके बावजूद मैं बुरी तरह नाकाम हुआ। रजब अली इस किरदार के कब्जे में मुकम्मल तौर पर जा चुका था। इन्हीं दिनों मेरे जर्मन शेफर्ड को किसी ने गोली मार दी। इसके जिस्म में जो गोली बरामद हुई वो मेरे रिवाल्वर की थी, और रिवाल्वर पर रजब अली की उंगलियों के निशानात मौजूद थे। काज़मी साहब ने पूछा, हैरत की बात है, आपने पुरअसरार वाक़यात वकूअ पज़ीर होने के बावजूद भी न सिर्फ रिवाल्वर को अपने कमरे में रखा, बल्कि कुत्ते की हिलाकत के बाद रिवाल्वर पर से फिंगरप्रिंट भी उठवाए। जरा इस बात की तस्दीक कर दीजिए। यूसुफी साहब ने बताया, दरअसल इन दिनों मामलात का आगाज हो चुका था, इसलिए मैं संजीदा नहीं था, लेकिन कुत्ते की मौत ने मुझे चौंका दिया। जब मैंने फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट हासिल की तो मालूम हुआ कि सब में रजब अली का हाथ है। मैंने रिवाल्वर को सेफ में रख दिया ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचाया जा सके। जज साहब बोले, क्या आपके पास इन वाकयात को साबित करने के लिए कोई गवाह मौजूद है? ज़ाहिर तो इन पर यकीन करना मुमकिन नहीं। अगर कोई गवाह मौजूद नहीं है तो फिर मौजू को तब्दील कर दीजिए। यूसुफी साहब मुस्कुराते हुए बोले, मुझे मालूम है कि मेरे बयान करता वाकयात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं गवाह को अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं डॉक्टर सोबिया को कटहरे में बुलाना चाहूँगा। वो मामले के मुतल्लिक तफसील से बयान करेंगे। जज साहब ने इस बात में सारी लाते हुए इजाज़त दे दी, और अगली रो में डॉक्टर सोबिया उठकर कटहरे में आ गई। इनकी उम्र 45 से 50 के दरमियान थी, ताहम मुनासिब लिबास और अच्छी खुराक की बदौलत उम्र से कम दिखाई देती थी। चेहरे के नकूश, दीदा जेब और जिस्मानी हतूत तबाहकुन थे। वो चेहरे पर नफीस शीशों वाली ऐनक लगाए हुए थे, जिसने इनके हुस्न को कम करने के बजाय मजीद बढ़ा दिया था। यूसुफी साहब के कहने पर उन्होंने बताना शुरू किया, मैंने रजब अली का केस जब हाथ में लिया तो चंद दिनों के बाद मुझे मालूम हो गया कि मामला नहायत पेचीदा और हसास है। रजब अली चंद महरूमियों का शिकार था, इनमें से सरे फहरिस्त माँ का ना होना था। वो इसके बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए वो तन्हाइयों के अजाब में गिरा हुआ था। यूसुफी साहब काम के सिलसिले में बाहर चले जाते थे और नौकरों का रवैया इसके साथ मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने इन तन्हाइयों के खात्मे के लिए यूसुफी साहब को किरदार तहलीक करने का मशवरा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो किरदार मार दाड़ वाला हो सकता है। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे कि ये किरदार बाज़ औक़ात इतने जानदार होते हैं कि अमली ज़िंदगी में दखल अंदाजी शुरू कर देते हैं। रजब अली के मामले में कुछ ऐसा हुआ, वो किरदार इस पर हावी हो गया और इसे अहकामात जारी करने लगा। रजब अली इन अहकामात की तामील बगैर किसी पसो पेश के कर दिया करता। लोगों को तंग करना, तोड़ फोड़ करना, बिला रिवाल्वर के जरिए कुत्ते की जान लेना। इन वाकयात के मुतालिक जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने फौरन इस किरदार को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इस वक्त तक वो काफ़ी हद तक खुद मुख्तार हो चुका था। इसने रजब अली के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और इसी सबब सितारा महरुन्निसा को जान से हाथ धोना पड़े। काज़मी साहब तंज़ीह लहजे में बोले, तो फिर मेरे ख्याल में रजब अली की बजाय फांसी पर इस किरदार को चढ़ा देना चाहिए। आपके बयान करदा वाकयात में मुझे वही कसूरवार दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सोबिया संजीदा लहजे में बोली, ऐसे किरदारों का हकीकत से कोई वजूद नहीं होता। ये मरीज के मर्ज को खत्म करने के लिए वक्ती तौर पर तहलीक किए जाते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ, यूसुफी साहब से ये गलती सरजद हुई कि उन्होंने जिस किरदार का इंतखाब किया वो मारदार से भरपूर था, और चूंकि रजब अली के दिमाग पर लड़ने भिड़ने के वाकयात नक्श थे, इसलिए इसके दिमाग ने इस किरदार को इसकी फितरत से मंसूब करते हुए इसे लड़ाई झगड़े पर मजबूर कर दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि सुपरमैन के किरदार में लड़ाई झगड़े के वाकयात तो जरूर होते हैं, लेकिन इस किरदार का ताल्लुक शर से नहीं, बल्कि वो अच्छे कामों के लिए तहलीक करता है। इसीलिए अगर यूसुफी साहब ऐसे ही किसी किरदार का इंतखाब करते तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती।
काज़मी साहब दोबारा तंज़ी लहजे में बोले, तो आपके कहने के मुताबिक महरुन्निसा को फ्लैट की बालकनी से नीचे धकेलने वाला रजब अली नहीं बल्कि वो तहलीक करदा किरदार है जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर सोबिया ने इनकार में सर हिला दिया, नहीं, महरुन्निसा को रजब अली ने ही बालकनी से नीचे धकेला, ताहम इसे उस वक्त अपने ऊपर इख्तियार नहीं था, वो किरदार के कब्जे में था। यूसुफी साहब के कहने के मुताबिक इस वाक़े से चंद लम्हे पहले लड़ाई झगड़े के दौरान महरुन्निसा ने इस किरदार को बुरा भला कहा, बल्कि शायद गाली भी दी। इस तल्ख कलामी के रद्द अमल के तौर पर जब रजब अली ने तैश में आकर इसे बालकनी से नीचे भी धकेल दिया। यह कोई हैरत अंगेज वाक़या नहीं, ऐसे और भी कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जिन पर शायद ही आप यकीन करें। मैं आपको इसके मुतालिक एक और वाक़या सुनाती हूँ। चंद दिन पहले मेरे पास एक ऐसे मरीज़ का केस आया जिसे इसका बाप ख्वाब में मुख्तलिफ काम करने के लिए कहता था, जैसा कि पानी की टंकी साफ करने के लिए या फिर गाड़ी को सर्विस करने के लिए। ये तमाम काम वो बहसन खूबी कर दिया करता और इन कामों की तफसील अपनी डायरी में तहरीर कर दिया करता। यहाँ ये भी बता दूं कि इसके बाप को मरे हुए साल भर का अरसा हो गया। फिर चंद दिनों के बाद इसने गोली मारकर अपने आप को ही खत्म कर लिया और मरने से कबल डायरी के सफ़हात में तहरीर किया कि ये सब करने के लिए इसके बाप ने ख्वाब में आकर कहा। इसकी मौत के बाद जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ इसका बाप पुलिस इंस्पेक्टर था जिसे रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया। इसके बाद इसने खुदकुशी कर ली। अपने बाप का ये किरदार लड़के ने दिमाग पर नक्श कर लिया था और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए इसने भी खुदकुशी कर ली। काज़मी साहब बोले, बेहतरीन कहानी है। मेरे ख्याल में किसी भी कातिल को फांसी से बचाने के लिए ऐसे नादीदा किरदार मामून साबित हो सकते हैं। मुखालिफ वकील भी अपने लड़के को ऐसा ही नफ्सियाती मरीज साबित करके सजा से बचाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि मेरी मोकला ने केस के मुतालिक चंद ऐसे इंकशाफात किए जिनको अगर मैं अदालत के सामने पेश कर दूं तो केस की नोयत तब्दील हो जाएगी। तो हम इनसे पर्दा मैं अगली पेशी के दौरान उठाऊंगा। यूसुफी साहब बोले, तो मैं पेशी खत्म होने से पहले अदालत से दरखास्त करता हूँ कि मुझे महरुन्निसा से मिलने की इजाज़त दी जाए। मैं इसे देखना चाहता हूँ ताकि मेरा इत्मीनान हो सके कि वो जिंदा है। जज साहब ने इस बात में सर हिलाते हुए इसे इजाज़त दे दी और अगले दिन पेशी का वक्त देकर मुकदमे को खत्म कर दिया। डॉक्टर सोबिया के ठहरे से निकलकर तमाम तमाशबीनों की जानिब चली गई। यूसुफी साहब इनके हमरा थे। इन्हें इकट्ठा जाता देखकर काज़मी साहब के चेहरे पर सोच की चंद लकीरें नमूदार हुई और फिर वो अदालत के कमरे से बाहर निकल आए।